Is it visible? Yeah, it is. हम शुरू करते हैं धीरे धीरे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेगा। हम थोड़ा इसके ऊपर इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले सबको बता देना चाहता हूँ कि ये सेकंड पार्ट है जो न्यू है, जो दोस्त पर्सन वो टोटली न्यू। ठीक है सुषमा, तुम एक बार अपने ग्रुप में एक बार लिख देना, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए। जो न्यू है वो अपना नंबर दे देना, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारे वेबिनार ग्रुप है अलग से वो में। Good evening, sir. Good evening, Good ma'am. evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes. Good evening, Shampoo. Good evening. I just joined. Good evening. Good evening, sir. Yes. अच्छा, today we are talking about the defense mechanism and ये डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर हम थोड़ा बात करने से पहले हम डायनामिक पर्सनालिटी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। एंड हेलो शालू मैम, गुड इवनिंग। सो एक्चुअली ये डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी एंड टुडे एक्चुअली ये कोर साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, कोर साइकोलॉजी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये कोर साइकोलॉजी में सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, साइकोलॉजी बैकग्राउंड का भी नहीं है, तो उन लोगों के लिए एंड इस थ्योरी में ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, कुछ वर्ड्स है जो आपको शायद नया लगे, तो प्रॉब्लम किसी किसी को ऑब्वियसली हो सकता है अगर हमने ठीक तरीके से नहीं समझाया। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा जितना दूर हो सके बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नाम ना यूज करके बहुत इजीली आपको दे सको, आपको बता सको ठीक तरीके से। अंडरस्टूड। सो यस शम्प्रति मैम, आई वांट टू आप शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया। Good evening, everyone, and thank you, Kamal sir, for inviting me, and welcome to all the participants. It's wonderful to see all of you here. Today's topic, which sir mentioned, is Sigmund Freud psychoanalytic theory, and it's one of the most renowned personality theories. Since it's quite a lengthy topic, so we have divided into 2-3 sessions. So in previous days webinar, we had covered structure of personality. So let me just give a quick recap. Under topographical model, we discussed 3 levels of consciousness. First was conscious mind, second was preconscious mind, and third one is unconscious mind. And in structural model, we discussed about 3 basic structures of personality: id, ego, superego. Id works on pleasure principle, ego works on reality principle, and superego works on morality principle. Today we will come across many new terms which are interrelated and also bit confusing. So I shall try to explain in a simplified way, giving examples so that those who are coming across these terms for the first time can also understand them well. So let's get started. Dynamics of personality. Freud stated that instincts are the ultimate cause of all our behavior. The two basic instincts are eros, that indicates life and sexual instinct, thanatos, which indicates destructive
or death instinct. So life instinct survival पर ध्यान देती है, on the other hand thanatos destruction करना चाहती है. Freud also identified both eros and thanatos coincide and conflict within the individuals. Eros is the drive of life, love, creativity, sexuality, self-satisfaction, and species preservation. Its counterpart is thanatos, meaning death instinct, that is aggression, which compels to destroy, conquer, and kill. According to Freud, the next page, please. According to Freud, every behavior has a cause, even slip of tongue. I hope everyone has heard about slip of tongue, and I'm sure it has occurred with each one of us. This is also termed as Freudian slip. Freudian slip reveals repressed secret thoughts and feelings in unconscious level. For example, a husband is trying to tell his wife that how much he loves her. But instead of telling his wife's name by slip of tongue, he utters his ex-girlfriend's name. So just imagine the situation. तो कभी कभी हम ये कहते हैं ना कि ये बात गलती से हमारे मुंह से निकल गई. I didn't mean to say this. जिसका मतलब है आपकी ये बात कॉन्शियस माइंड से नहीं गई थी. Rather, it came from the repressed thoughts of our unconscious mind. Over to you, sir, for your graphological explanation. Thank you. Thank you. Actually, we have been talking about the dynamic of personality. ठीक है? Dynamic of personality में क्या होता है? सबसे ज़्यादा ये पिछले दिन हमने सीखा था कि ये ईगोस आईडी ईगो सुपर बारे में हमने सीख लिया. तो वहाँ पे एक चीज आता है, दोज आर कॉल्ड बेसिक इंस्टिंक्ट. ठीक है? बेसिक इंस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? बेसिक इंस्टिंक्ट हम लोग वहाँ से सीखा था लास्ट डे, लेकिन आज हम उसको 2 डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं, जैसे इरोस एंड थैनाटोस. तो ये इरोस का मतलब क्या होता है? इरोस का मतलब होता है हम लोगों में लव का रिलेशनशिप. कोई भी रिलेशनशिप जो हम लोगों को बेसिक इंस्टिंक्ट में मोटिवेट करता है. सपोज किसी के साथ मेरा बिजनेस रिलेशनशिप, तो वो भी तो मुझे अर्निंग दे रहा है. ठीक है? तो फूड एंड मनी भी वहाँ से मुझे मिल रहा है, तो दैट इज आल्सो बेसिक इंस्टिंक्ट. तो ये उस रिलेशनशिप को कैसे हम लोग यूनाइटेड बना सके, ठीक है, उसको इरोस दिखाता है. थैनाटोस क्या करता है? थैनाटोस हमेशा डिस्ट्रक्टिव कर देता है. ठीक है? डिस्ट्रक्टिव नेचर कर देता है कोई भी रिलेशनशिप का. ठीक है? तो ये अब हैंडराइटिंग से कैसे जान सकते हैं? 200 বলে 24 নম্বর মাপ, 2 ইঞ্চি 300 350 এগুলো যখন হবে তখন 25-26 নম্বর মাপে চলে যেত. আর 2 ইঞ্চি 200 যেটা সেটা 22 নম্বর মাপ আছে. 2 ইঞ্চি 100 যেটা, কিন্তু 2 ইঞ্চি 200 যেটা সেটা 24 নম্বর মাপ. কিন্তু এটা দেখা যাচ্ছে 25 নম্বরে চলে গেছে. तो इरोस एंड थैनाटोस इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया. एंड अभी देखिए ये जो इरोस होता है, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग ये टोटल बेसिक इंस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आता है हम लोगों का लोअर जोन. ठीक है? हैंडराइटिंग का लोअर जोन पार्ट में आता है. तो लास्ट डे मुझे जो नया है उसको एक बार और बता दूं. अपर जोन, लोअर जोन एंड मिडिल जोन. तो ये अपर, मिडिल एंड लोअर जोन हम किसको कहते हैं? सपोज देयर इज ए लाइन, अब देख लीजिए हाथेর সাথে লেগে থাকে. এবার হাতের সাথে যেহেতু লেগে থাকে, আপনি ये आ गया हम लोगों का मिडिल जोन, ये आ गया अपर जोन एंड ये हो गया लोअर जोन. तो ये अपर, लोअर एंड मिडिल, एंड हम लोग इस एरिया के ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है?
इस एरिया को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट से। इस एरिया को बेसिक इंस्टिंक्ट माना जाता है एंड इस एरिया को कैसे हम इरोस कहते हैं। इरोस का मतलब क्या होता है, लव जो सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है, कुछ ऐसा लव जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है, दैट इज इरोस। सो मैं थोड़ा बता देता हूँ वो हैंडराइटिंग से कैसे जाना जाएगा। এটা বানান মাপ নেওয়াটা একটা কিন্তু খুব বড় সমস্যার ব্যাপার। এটা সবসময় कोई আমাদের भी लोअर जोन का जो लेटर है, कोई भी लोअर जोन का जो लेटर है बेसिकली जी एंड वाई, ठीक है, ये अगर पूरा हो जाए, पूरा किसी का जी, देखिए ये अगर पूरा मिडिल जोन में आ जाए, ठीक है, ये आ गया मिडिल जोन में, ये एंडिंग पॉइंट आ गया मिडिल जोन, हैव यू नोटिस्ड। तो ये आ गया मिडिल जोन में, दैट मींस ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मॉनिटरी भी सेटिस्फेक्शन दे सकता है, এই জিনিসটা ठीक है, मॉनिटरी भी सेटिस्फेक्शन दे सकता है। तो ऑब्वियसली आपको कोई भी सेटिस्फेक्शन ये दे सकता है। तो जैसे भी है ये फिनिश करना चाहिए। फिनिश का मतलब क्या है, मिडिल जोन में आना चाहिए। तब हीरोस का मतलब होता है ये वाला पार्ट। एंड व्हाट अबाउट द थैनाटोस? थैनाटोस इज द डिस्ट्रक्टिव नेचर। डिस्ट्रक्टिव नेचर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव नेचर देखिए, जैसे अगर कोई इस तरीके से लिखता है तो उसके दिमाग में डिस्ट्रक्टिव नेचर, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर इंडिकेट करता है, दैट मींस ही इज द पर्सन इज कैरिंग गिल्ट, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा कभी भी कुछ ऐसा गलत काम इसने कर चुका है जो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो गलत काम आज भी उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यू आर कैरिंग गिल्ट, गिल्टी माइंडेड नेचर, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो लेटर इस तरह से आता है, जैसे ये भी हो सकता है। और अगर कोई अब अनफिनिश कर दो, ये भी डिस्ट्रक्टिव नेचर इंडिकेट करता है, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है किसी के हैंडराइटिंग में इसको हम नॉट कहते हैं, नॉट, ठीक है। एंड ये मैं जी के हिसाब से बोल रहा हूँ, नॉट ओनली जी, जी वाई पी क्यू, कोई भी लोअर जोन का लेटर में ये हो सकता है, अंडरस्टूड। एंड कभी ऐसा भी हो सकता है, आप देखिए, ठीक है, these are not good sign, these are not good sign, ठीक है। और ये देखिए, ये लोअर जोन में खत्म हो गया, हैव यू नोटिस, ट्रायंगल बन के लोअर जोन में खत्म हो गया। और कभी ऐसा भी हो सकता है, दोस पर्सन आर वेरी अनहैप्पी, ये मिडिल जोन में आ गया था, लेकिन फिर से लोअर जोन की तरफ चल रहा है, हैव यू नोटिस, दोस पर्सन्स आर अनहैप्पी एक्चुअली, ठीक है। एंड अगर किसी का हुक आ जाए, हुक का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हुक, ठीक है। আচ্ছা এখন থেকে একটা জিনিস বলি, এই যে লজেন্স दिस গুলো इज कॉल्ड हुक। তুমি সেদিনকে এর আগে থেকে যে লজেন্স দেখাচ্ছিল ওই লজেন্সটা কে এনেছিল বা কার থেকে এনেছিল ওই লজেন্সটার অবস্থাটা আমরা तो ये हुक अगर किसी के हैंडराइटिंग में आ जाए, कोई क्यू लिखता है, क्यू तो बहुत लोग लिखता है इस तरीके से, है ना, क्यू बहुत लोग लिखते होंगे, आप देखा है इस तरीके से क्यू लिखता है, तो ये भी डिस्ट्रक्टिव नेचर, दिस इज नॉट ए गुड साइन, अंडरस्टूड, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट सकता है। सो ये होता है थैनाटोस एंड इरोस। जैसा मैंने कहा, इरोस होता है ओनली सेटिस्फेक्शन, व्हाट गिव्स यू कंप्लीटिंग द लोअर जोन। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस, चलिए मैम नेक्स्ट बताइए आप। अब हम थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर साइकोलॉजी, ओके, इन आवर डेली लाइफ एंड हम लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करके ही होता है सबका। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट डे हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, वो हम डिटेल में बात करेंगे, दैट इज क्वाइट बोल्ड टॉपिक। सो आज हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को। यस, शांति मैम प्लीज। Thank you. So let's move ahead to defense mechanism, यानी सुरक्षा युक्तियां।
Defense mechanism is the strategies used by ego to reduce our stress and anxiety. डिफेंस का मतलब है जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आइदर हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं या रीजंस और एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई गलती हो गई है तो या तो आप उस गलती को मान लेते हैं या डिनाई करते हैं। कभी कभी उस गलती के लिए आप दूसरों पर भी ब्लेम डालते हैं और ये एक ह्यूमन नेचर है और ये हम सब इसलिए करते हैं ताकि हमें स्ट्रेस या एंजाइटी ना हो। तो हमारे अंदर जब एंजाइटी बढ़ जाती है तभी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करती है। Defense mechanism was first introduced by Freud, but it was elaborated by his daughter Anna Freud in 1966. But today we shall only discuss 9 most important types of defense mechanism. There are about maybe 100 or more we have defense mechanism, but today we'll only discuss about 9 defense mechanisms. First one is denial. It involves denying the existence of an external threat or any traumatic event. तो डिनाइल का मतलब है रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। कभी कभी हमारे जो पेनफुल थॉट्स होते हैं उसे हम फेस करने से मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर पता चले कि उसे कैंसर है तो व्हाट विल बी हिज फर्स्ट रिएक्शन? ही विल फर्स्ट से नहीं, ये रिपोर्ट, सारे मेडिकल रिपोर्ट्स गलत है, आई शैल गो फॉर अ सेकेंड ओपिनियन। मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। सो दिस इज डिनाइल। That person is in denial state. Another example, suppose a boy has proposed a girl and the girl has rejected him. In spite of that, the boy keeps texting her, proposing her, knowingly the girl has rejected him. So the boy is in denial state. So can you go to the next page, please? The next defense mechanism is repression. It involves unconscious denial of existence of something that causes anxiety. हिंदी में इसे कहते हैं दमन करना, इच्छाओं को अनकॉन्शियस माइंड में दबा देना। फ्रॉइड हैज आल्सो टर्म्ड दिस एज सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। इसका मतलब है कुछ मेमोरीज को जानबूझकर भुला देना। For example, if any child has suffered abuse by a parent during her childhood, she represses those memories and becomes completely unaware when she grows up to an adult. So here ego totally represses the desires of it or suppresses any bitter memories to the unconscious mind, so that one feels that these memories are no longer dangerous. Over to you, तो हम डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे थे। ये डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली होता क्या है? आप अगर ठंडे दिमाग से एक्सेप्टेबल मोमेंट को लेके अगर आप सोचोगे, ठीक है, कोई डिफेंस नहीं करोगे मेरे बात, तो आप देखना कि ये डिफेंस मैकेनिज्म आता है कहाँ से? डर से आता है, डर एंड एंजाइटी, इजंट इट? अच्छी तरीके से आप सोचो कि एंजाइटी से ही सब कुछ पैदा होता है। मुझे किसी ने, कोई मुझे कुछ कह दे, कुछ बुरा भला कह दे, इसी डर से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है, किसी से कोई गलत काम करना पड़ता है, ठीक है, ये सब कुछ आता है डर से ही शुरू होता है। तो हैंडराइटिंग से ये कैसे समझ आ सकता है, मैं दिखा देता हूँ। এখানে আসছে সে অবাক হয়ে যাবে, বাইরে বেরিয়ে সে অবাক হয়ে যাবে যে আমার সাথে কি ব্যবহার করবে, আমাকে কতটা সম্মান দিল। তার মনের থেকে সমস্ত মানে দুর্বলতা তার মনের থেকে সেই তখন মন খুলে আমার এখানে আসতে পারবে। পরবর্তী দিন সে আমার এখানে আসার সময় দেখেছি। तो सबसे पहले हम लोग डिनायल की बात करते हैं। डिनायल का मतलब क्या होता है? कि कोई डर, कुछ ऐसा होगा, कुछ गलत कुछ होने वाला है। एक्चुअली टोटल
एग्जैक्टली ये डर किसके लिए होता है? डर तो हमेशा प्रेजेंट में कुछ नहीं होता, डर हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है, ठीक है? डर इज टोटली फ्यूचर टेंस, ठीक है? तो ये कुछ ऐसा हम लोगों के साथ होने वाला है, इसलिए मैं डिनाई कर रहा हूँ आज आपकी बात, ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे अगर आप किसी का इस तरीके से लुक देखोगे, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज मैं ए लिख रहा हूँ इस तरीके से, ओ लिख रहा हूँ इस तरीके से, तो हैव यू नोटिस देयर इज ए नॉट, दिस इज कॉल्ड नॉट, नॉट की जैसा बन रहा है ना? तो दैट मीन्स ये क्या कैरेक्टर इंडिकेट करता है? सेल्फ डिसीव कैरेक्टर। मतलब देखो ये कैरेक्टर हमने बहुत बार बात किया है इसके ऊपर, इसका मतलब होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरों की बात मैं मान नहीं सकता, ठीक है? तो एक चीज देखो, ये कहाँ से पैदा होता है? ये कैरेक्टर ये डर से ही पैदा होता है ना? ये डर से ही पैदा होता है, एंजाइटी से पैदा होता है ना? तो ये देखो सेकंड और इसमें भी हो सकता है, जो डबल लुक डाल देते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये थोड़ा झूठ बोल देते हैं, ठीक है? झूठ बोलने का नेचर इसमें आ जाते हैं, जो कुछ ना कुछ छुपाने के लिए, डर से ये ऐसा हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट एक और चीज जो बहुत परेशान करता है, पूरी जिंदगी ये लेटर परेशान करता है। अगर किसी के लेटर, जिसको हम ग्राफोलॉजिकली स्टिंजर कहते हैं, देखो ये अंदर आ गया, हैव यू नोटिस? इस तरह से बहुत लोग लिखते हैं लेटर ए ओ, जिसका स्टार्टिंग स्ट्रोक ओवल के बीच से शुरू होता है एंड ओवल के बीच में आके खत्म होता है। हैव यू नोटिस? सपोज इन केस ऑफ दिस मैंने डी लिखा, इसका स्टार्टिंग स्ट्रोक देखिए ओवल्स के बीच से शुरू हुआ है। इन केस ऑफ जी, यहाँ पे भी देखिए ओवल के बीच से शुरू हो रहा है, तो इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है? इसको हम हैंडराइटिंग से स्टिंजर कहते हैं। इन सब लोगों में बहुत तरह का ग्राज होता है, ठीक है? जो ठीक तरीके से कभी किसी को ठीक तरीके से बता नहीं पता। अगर उसको आप पूछोगे कि आपके साथ कुछ जब आप छोटे थे, कुछ छोटे से उम्र से कुछ बहुत कुछ देख के आप बड़े हो चुके हो, तो वो इस तरह से बात कभी-कभी मैंने देखा है, इस तरह से शो ऑफ करता है कि ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरे पापा और मम्मी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इवन, ठीक है? मिनिमम झगड़ा भी नहीं हो सकता। इस तरह से एटीट्यूड इन लोगों में कभी-कभी होता है, ठीक है? एंड और भी बहुत तरह का ये अपने फिजिकल भी बहुत इफेक्ट करता है हम लोगों के बॉडी पर, फिजिकली इफेक्ट एंड मेंटली इफेक्ट तो बहुत रहता ही है, अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट किसी का अगर ये लोअर जोन किसी का अगर ये बेलून के जैसा हो जाए, हैव यू नोटिस? दिस इज द बेलून लोअर जोन। इन लोगों के पास भी नॉलेज होता है, अगर आपने इस लोगों के पास से कुछ एडवाइस लेने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली दे विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस, अंडरस्टूड? दे विल गिव यू प्रॉपर एडवाइस, लेकिन ये खुद अपने रास्ते पर चलने में प्रॉब्लम होता है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का हंगर ज्यादा है, हंगर ज्यादा है इन लोगों का, अंडरस्टूड? इन लोगों का बहुत प्रॉब्लम भी होता है लाइफ में, सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता इन लोगों को, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले थैनाटोस में कह रहा था, है ना? नेक्स्ट हम कुछ डिप्रेशन, अभी जो डिप्रेशन के बारे में मैम ने बात किया, तो डिप्रेस्ड का मतलब क्या है? एक चीज देखो, जिसके लिए ये डिप्रेशन वर्ड नया है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ डिप्रेस्ड का मतलब है अगर आपका फीलिंग्स अननेसेसरी, जोर जबरदस्ती आप सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है? कुछ दिन पहले one girl came to me. She told that she was abused at the age of near about 8 to 10 by her teacher. Okay? तो पहले वो बहुत ज्यादा सबसे बात करता था, बहुत मिलता था सबसे, लेकिन वो होने के बाद वो उसने किसी से नहीं कह पाया, उसने पापा मम्मी से भी नहीं कहा, ठीक है? ड्यूरिंग काउंसलिंग शी टोल्ड मी, एंड उसने कहा कि उसके बाद से उसका कैरेक्टर अभी टोटली इंट्रोवर्ट हो चुका है।
तो ये अगर आप कहोगे कि उसका कैरेक्टर इंट्रोवर्ट है तो ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, लेकिन वो कहाँ से पैदा हुआ? उस घटना के बाद हुआ है, ठीक है? तो ये हो गया उसका डिस्ट्रक्टिव नेचर, उसने रिप्रेस कर दिया, उसका कैरेक्टर ही ऐसा हो चुका है अब। किसी से ठीक तरीके से घुल मिल के बात नहीं करता, ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करता ठीक तरीके से, हमेशा डरा डरा रहता है, पूरी जिंदगी ऐसा। उसका उम्र है शायद अभी 15-16, मैं भूल गया कि 18 ऐसा कुछ। तो ऐसा कैरेक्टर बन चुका है, दैट इज नॉट गुड ऑब्वियसली, इजंट इट? तो ये हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा? अगर किसी का इमोशन अगर दबा हुआ है, दैट मीन्स सपोज इसका इमोशन देखो मिडिल जोन में आया नहीं, लोअर जोन में खत्म हो गया, है ना? तो इसका इमोशन दबा हुआ है, हैव यू नोटिस्ड? एंड अगर कोई रिट्रेस लिखता है, रिट्रेस का मतलब क्या है? जिस लाइन से ऊपर जा रहा है, जिस लाइन से ऊपर जा रहा है उसी लाइन से वापस आ रहा है, ठीक है? अपर जोन लेटर बहुत लोग इस तरह से लिखता है ना, ও ছোট হয়ে যাবে ও এখানে হিসাব করে দিয়েছে 50,100 টাকা मतलब इन लोगों का ना एक्चुअली বা कंट्रैक्टेड हो जाता है इन लोगों का मेंटेलिटी, ठीक है? कंट्रैक्टेड मतलब रिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है? किसी से खुल मिल के बात नहीं कर सकता ठीक तरीके से, ठीक है? जो इतना जिस लाइन से जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसी रास्ते से वापस आ रहे हो, that means you cannot think about you cannot think beyond of your imagination, isn't it? কাউন্টারে গিয়ে ওটা হয়ে গেল অন্য কাছে नेक्स्ट आ सकता है, अब देखिए अगर किसी का বছরে 500 টাকা বা ट्रायंगल लूप होता है, তখন এটা বলবে इस तरह का ट्रायंगल लूप होता বেসিক है, একটা লেখাটা तो কাস্টমার इसमें যারা भी हो পায় सकता ওটা নিয়ে है। एंड किसी का এবার যতই কমাক না কেন इस तरह का টাকা नेचर होता কাস্টমার है, পায় তারা যদি इसमें भी आ सकता है। एंड कोई भी हैंडराइटिंग में इस तरह का सपोज এবার আপনি দেখেন कैपिटल ए 850 लिखता है, হিসেবে बहुत দিচ্ছে लोग তো তাহলে स्टाइल करके कैपिटल ए लिखता है ना? बहुत लोग आपने देखा होगा, इवन ए से जिसका हैंडराइटिंग शुरू होता है, मतलब वो नाम शुरू होता है, तो ऑटोग्राफ में ऐसा आ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होता है उसके लाइफ में, ठीक है? नेक्स्ट देखो कोई इस तरह से भी लेटर टी बना रहा है, कोई इस तरह से लेटर एस बना रहा है, मैंने देखा किसी को लेटर एफ बनाने के लिए इस तरीके से, ठीक है? ये सब कुछ उसका इमोशन रिप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर कभी भी देखो कोई किसी का लोअर जोन इस तरह से नीचे जाके ना इंक फील्ड हो गया, बहुत ज्यादा अननेसेसरी इंक चला आया, ऑब्वियसली दीज आर नॉट गुड, दीज आर नॉट ए गुड साइन, ठीक है? एंड किसी का ये लोअर पोर्शन ऐसा हो रहा है, तो ये सब कुछ डिप्रेशन इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट यस समृद्धि मैम प्लीज, आई हैंड ओवर टू কিন্তু সে যখন দামাদামি লাইনে চলে যাবে না ওটা আরো কম দেবো হ্যাঁ আমার টাকা দিয়ে আসলে আমার তো দামাদামি করি না এটা দাম ঠিক আছে আপনি বলছেন আমার यू। डिप्रेशन completed, it's regression, yes, depression. So moving forward, the next defense mechanism is regression. Here, the person retreats to an earlier period of life that was more pleasant and displays some childish behavior. It is also called flight to childhood or back journey. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्लास 10 का स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाए तो घर आकर बिल्कुल बच्चे जैसा बिहेव करने लगता है, वो रोने लगता है, सर पीटने लगता है जैसे कि वो 5-6 साल का बच्चा। तो ये बिहेवियर रिग्रेशन शो करता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है आप सामने से कुछ और हो और पीछे से कुछ और। आपके अंदर कुछ इमोशंस हैं पर बाहर आप कुछ और इमोशंस शो कर रहे हो। कभी कभी हमारे कुछ फीलिंग्स सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं, उस सोशली अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स को दबा देते हैं
और उस जगह पे अपनी ऑपोजिट फीलिंग्स शो करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज डॉटर इन लॉ जो अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, पर अपना गुस्सा सास को दिखा भी नहीं सकती है क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। इसीलिए वो सबके सामने अपनी सास की बहुत तारीफ करेगी, उनके पैर छुएगी, उनका आदर सम्मान भी करेगी। So what is she is doing? She is displaying just the opposite behavior of her exact emotion. So ये सब reaction formation कहलाता है। Next famous defense mechanism is projection. डेली लाइफ में हम सब प्रोजेक्शन यूज करते हैं। हम खुद की कमियों को दूसरे पर डाल देते हैं, इसे दूसरे पर प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करना मतलब प्रक्षेपण करना। जब हम कोई गलती कर बैठते हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय दूसरे को ब्लेम करते हैं। सो लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज आप घर की सफाई कर रहे हैं और वहीं टेबल पे चाय की कप पड़ी और अचानक से आपका हाथ लगकर वो कप गिरकर टूट जाता है। तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो? ये कप यहाँ किसने रखा है? आप ये नहीं बोलते कि मेरा हाथ लगकर गिर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो गलती किसकी है? जिसने वो कप वहां पे रखा था। So therefore projection, so this is the kind of projection we often use in our daily life. So projection is another way of defending against disturbing and attributing them to someone else. Over to you, sir. Thank you. It's interesting place. रिग्रेशन की बात कर रहे थे हम। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। रिग्रेशन का मतलब होता है जो आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप पीछे चले आ रहे हो। ठीक है, आगे जाने की कोशिश करना चाहते हो आप, लेकिन आप पीछे ही चले आते हो। ठीक है, रिग्रेसिव नेचर दैट इज कॉल्ड। तो हम लोग ये लैंग्वेज से कैसे जान सकते हैं? सपोज आप देखिए, अच्छा, हम हिंदी में सपोज हिंदी में ओ लिखते हैं कैसे? कुछ ऐसे, शायद मैं भूल गया, शायद ऐसे, ऐसा ही है ना? ओ इन केस ऑफ, हाँ यस, इन केस ऑफ हमारे बंगाली में भी हम ओ लिखते हैं कैसे? ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एंड इन केस ऑफ लेटर ए लिखते हैं ऐसे, लेटर बी लिखते हैं ऐसे, एंड इन केस ऑफ लेटर सी लिख रहे हैं ऐसे। एंड यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ हम हिंदी में अगर हम कॉल लिखना चाहते हैं, शायद ऐसे ही लिखता है, शायद इस तरह से कुछ लिखता है। तो अभी आप देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ये रिग्रेसिव हम क्यों कह रहे हैं? रिग्रेशन मतलब हम तो हमेशा लिखते लिखते लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, है ना? तो लेफ्ट साइड इज आवर पास्ट लाइफ एंड राइट साइड इज आवर फ्यूचर, है ना? लेकिन हम लेटर कैसे बना रहे हैं? लेटर देखिए, ये ऑपोजिट, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया आपका रिग्रेसिव लेटर। तो ये रिग्रेसिव लेटर अगर ज्यादा लिखोगे तो रिग्रेसिव नेचर आ सकता है, इजंट इट? तो हमारे लैंग्वेज में ये कॉ में भी देखिए, कॉ में ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव, ये हो गया प्रोग्रेसिवनेस, है ना? कॉ में लेफ्ट से राइट में जा रहा है, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज। इन केस ऑफ लेटर ए बी सी में भी देखिए, ये प्रोग्रेसिव हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव
जा रहा है। तो इसीलिए तो हिंदी में जैसे क में प्रोग्रेशन हो रहा है लेकिन अ में रिग्रेशन हो रहा है। सो दैट मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज इज क्वाइट ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। मैक्सिमम लेटर्स आर क्वाइट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप लेटर ओ लिखोगे ये क्लॉकवाइज ओ लिखोगे, तो क्लॉकवाइज ओ लिखोगे तो रिग्रेशन आ जाएगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज ओ लिखोगे तो ऑब्वियसली प्रोग्रेशन आ जाएगा वहां पे। तो हिंदी में देखिए जैसे रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन बोथ आर प्रेजेंट। तो इंडिया को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत गरीब आदमी रहता है एंड बहुत बड़ा आदमी भी रह सकता है। यहाँ पे बहुत कुछ मिक्सचर है सबका। तो प्रोग्रेशन एंड रिग्रेशन का मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया। ठीक है, तो ये लैंग्वेज से हम कैसे जान सकते हैं, जस्ट ऐसे जैसे मैंने कहा। एंड रिग्रेशन और कई कई जगह होता है, जैसे अगर आप सपोज, May I ask a question? sure. Yeah. I was asking that about the regressive and progressive nature of certain languages. Then you can say that all the Arabic languages and Hebrew and from Jerusalem and all of that regions, they have a tendency of writing from right to left. Most of their letters. Yes, I'm telling you. Then what would you say? The whole branch. Suppose in case of Urdu language इस तरीके से सपोज लिखता है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से लिखता है, ऑब्वियसली ये रिग्रेशन। लेकिन आप तो ये यूज कर रहे हो राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं, है ना, तो उसके लिए तो वो प्रोग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट से हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेकिन वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। उसके लिए ये प्रोग्रेसिव लैंग्वेज यूज होगा। उसके लिए ये प्रोग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, so left direction is not important regarding if the pattern of the language is left to right, then we will see that the left to right is progressive. If the pattern of the language is from right to left, then the right to left is progressive. अच्छा, thank you. अच्छा, नेक्स्ट कोई कोई ऐसे लिखता है जैसे अगर कोई लोअर जोन इस तरीके से देते हैं तो ये हो गया उसका फियर आ जाता है इनमें। ठीक है, सक्सेस इसको नहीं मिलता ठीक तरीके से, रिग्रेसिव हो जाता है इसका नेचर। डिफेंसिव स्ट्रोक देते हैं। डिफेंसिव स्ट्रोक का मतलब इस तरह से टी लिख देते हैं, बहुत बड़ा करके इस तरह से गोल लेफ्ट साइड में चला जाता है किसी किसी का लेटर टी। ठीक है, अगर हम सपोज मैं अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ इस तरह से गोल करके लिख दिया, ठीक है, ये रिग्रेसिव नेचर आ जाते हैं। ठीक है, एंड कभी कभी कोई अगर सिग्नेचर कर रहा है इस तरीके से, मतलब अपर पोर्शन वो बाहर चला गया, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये डिफेंसिव एटीट्यूड इंडिकेट करता है। ठीक है, वो डिफेंस करना पसंद करता है उनमें, वो आगे जाने से डरेगा वो। ठीक है, डर रहेगा दिल में बहुत सारा, बहुत कुछ उसने देखा है, बहुत कुछ उसने सहा है। अंडरस्टूड, ये आ गया रिग्रेसिव नेचर। एंड एक और बात, जैसे संपत्ति मैम कहा, रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये होता है। रिएक्शन फॉर्मेशन हम सब लोग करते हैं। जैसे अगर इस तरीके से कर रहे हो, मेरे पास बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा गरीब हूँ, तो मैं दूसरों को क्या शो ऑफ करूंगा। कोई गेस्ट आएगा मेरे घर, मैं उनको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ उसके लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं हाईएस्ट लेवल में उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये रिएक्शन फॉर्मिंग मैं खुद से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है, मैं अपने हिसाब से ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई जी लिखता है इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, द पर्सन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सेक्सुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इस तरह से शो ऑफ करने की इच्छा रहेगा। ठीक है, मेंटली डिजायर भी ऐसा रहेगा, बट द पर्सन इज नॉट एक्चुअली सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। अंडरस्टूड, हैंडराइटिंग से। एंड अगर आप देखोगे इस तरह से एच लिखता है,
तो एज का अपर पोर्शन देखिए कि कितना बेलून के जैसा हो गया। तो द पर्सन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा शो अप करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्चुअली तो वो है नहीं ऐसा। अंडरस्टूड। एंड इसके साथ और भी आप देख सकते हो, इसके साथ अगर उसका लेफ्ट मार्जिन वो अगर सीधा नहीं हो, वेवी हो जाता है, तो वो कॉन्फर्म रिएक्शन फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। कॉन्फर्म। अंडरस्टूड। ये गारंटेड है। लेफ्ट मार्जिन अगर ये इसके साथ वेवी हो रहा है, एंड इसके साथ आप देखिए किसी का लोअर जोन इस तरह से नॉट आता है, इसके साथ आप लेफ्ट मार्जिन वेवी हो रहा है, लेफ्ट मार्जिन वेवी। বাধ্যতামূলকভাবে পার্শ্ব দিচ্ছে না ठीक है, इसके साथ आप ऐड कीजिए और भी कॉम्बिनेशन कीजिए, बहुत कुछ कॉम्बिनेशन में आप कर सकते हो। ये बेलून अपर जोन हो गया, इसका नेचर क्या हो सकता है? These are all example of reaction formation. Understood? आप कैसे अपना रिएक्शन फॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट कोई ऐसा भी लिखता है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन, लेटर एम को डब्ल्यू की तरह दिखता है किसी किसी का। हैव यू नोटिस्ड? किसी किसी का लेटर एम डब्ल्यू जैसा दिखना शुरू हो जाता है जब जल्दबाजी में लिखता है, ऐसा लिख देते हैं कोई 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 लेटर एन को यू की तरह दिख रहा है किसी किसी को। ये सब फॉर्मेशन है। ड्यूअल मैनर में बात करना इसको पसंद है। ठीक है, जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपसे कुछ बात और कर रहा है। अंडरस्टूड? इस तरीके से आ जाते हैं उसके। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ शायद। यस यस सिंपली मैम। Projection behind it. अच्छा प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है मैं बता देता हूँ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये क्या होता है, मतलब कुछ आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या शो ऑफ करते हो, मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो। प्रोजेक्शन आप अपने आप को कैसे दिखाने की कोशिश करोगे। ठीक है, किस तरह होगा आपका बिहेवियर। सपोज आप देखिए, बहुत बार आप ऐसा काम कर चुके हो कि वो ठीक नहीं है वो काम, लेकिन आप वो बात किसी को नहीं कह सकते, तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करवाना चाहते हो। तो ये कैसे हो सकता है हैंडराइटिंग में, अगर किसी का स्लांट अगर मल्टी स्लांट है, मल्टी स्लांट देखिए ये 90 डिग्री, ये लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ये राइट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया उसका मल्टी स्लांट। इनमें मूड खराब होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है, इसका मूड कभी भी ठीक नहीं रहता, हमेशा कभी भी उसका मूड खराब हो जाता है, कभी भी मूड डिस्टर्बेंस बहुत होता है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ना एक लाइफ को एक चैलेंज हो जाता है, इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बैटल, बहुत ज्यादा फाइट करते हैं उसके माइंड के साथ, उसके ब्रेन का। ठीक है, तो ये मल्टी स्लांट में इस तरह का मूड का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है, जैसे अब देखो, जैसे ये बेलून के जैसे मैंने अभी कह रहा था, ये बेलून में भी ऐसा हो सकता है कि इसमें पॉजिटिवनेस आ जाते हैं। ठीक है, कोई और लड़का मेरे वाइफ के साथ बात कर रहा है तो मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग हो रहा है। ठीक है, मैं उसको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन उस लोग से, जो लड़का मेरे वाइफ के साथ बात कर रहा है, मैं उससे बहुत अच्छा बिहेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मेरे वाइफ को जो कुछ कहूंगा उनको नहीं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोजेक्शन होगा उसके लिए। एंड कभी कभी लेटर ई में देखो, लेटर ई में अगर बहुत अच्छा ई हो तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे देखो लेटर ई अगर सपोज इस तरह से ई लिखा मैंने, या बहुत छोटा करके इस तरह से ई लिखा, अगर इसमें बहुत ज्यादा इंक फ्लो हो गया, हैव यू नोटिस ये इंक फ्लो, तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रोजेक्शन में डिस्टर्ब आता है, वायलेंट हो सकता है कभी भी। ठीक है, बहुत ज्यादा वायलेंट हो सकता है किसी के ऊपर बहुत इजी महसूस करवा सकता है। फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, एंगर आ जाता है, विदाउट रीजन एंगर आ सकता है। ठीक है, एंड अगर किसी का एक और हो सकता है,
Suppose if this is your handwriting, आपका slant leftward है, आपका actual slant leftward, लेकिन आप signature कर रहे हो rightward, signature कर रहे हो rightward, तो क्या होगा? तो आप you are actually you are an introvert person, लेकिन आप extrovert होने का दिखाने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है? दूसरों को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहते हो कि यू आर वेरी एक्सट्रोवर्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जब एक्चुअली क्या होता है, सिग्नेचर एंड टेक्स्ट ये दोनों कभी भी अनमैच होना नहीं चाहिए, ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। जो भी उसका कैरेक्टर है, जो खराब है तो खराब ही दिखने दो, क्या प्रॉब्लम है? लोग थोड़ा खराब बोलेगा और तो कुछ नहीं बताएगा, तो आप अगर बुरा लग रहा है आपको तो चेंज कर लो वो खराब कैरेक्टर, ठीक है? क्योंकि ये आपके दिल में बहुत असर पड़ता है, ठीक है? इन लोगों को फिजिकल बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इन फ्यूचर धीरे धीरे, क्योंकि इसका प्रॉब्लम मेंटल प्रॉब्लम से फ्यूचर फिजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है इन लोगों का। नेक्स्ट रैशनलाइजेशन के बारे में आप बता दीजिए थोड़ा सिंपैथी में। Yes, sure. প্লাস কয়েকটা এশিয়ান এক্সপ্রেসের পিস So please share. Yes, yes, ma'am, share. I'm trying to share with you. Thank you. So the next defense mechanism is rationalization, यानी कि युक्तिकरण करना। रैशनलाइजेशन का मतलब है रीजन देना। जैसे हमने पिछले डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ा कि प्रोजेक्शन का मतलब है किसी और को ब्लेम करना, बट रैशनलाइजेशन का मतलब है अपनी गलती को सही ठहराने के लिए आर्ग्यूमेंट देना। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमन शॉपिंग मॉल जाती है और वह बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। वो कुछ ऐसी चीजें खरीद लेती है जिसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब वो रीजन क्या देगी? तो शॉपिंग मॉल में बहुत डिस्काउंट चल रहा था, मुझे 50% डिस्काउंट मिल गया, बहुत सस्ते में मुझे इतनी चीजें मिल गई। So in this way, she is giving reasons to justify her behavior and giving a rational explanation. So rationalization means finding an argumentative explanation for something you have not done right. Another example, suppose एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है, पर वो स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए थे, मेरा प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया था, पर टीचर ने मुझे फेल करना दिया बिकॉज द टीचर हेट्स मी। सो दिस इज rationalization. Next one is very important again I will say is intellectualization, which involves a person using reason and logic to avoid uncomfortable or anxiety provoking emotions. यानी कि अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लॉजिकल थॉट्स में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपके नेबर आपसे बहुत रूडली बिहेव करते हैं और आपको पूरी तरह से इंसल्ट भी करते हैं, परंतु आप अपने नेबर पर गुस्सा होने के बजाय आप पॉसिबल रीजंस ढूंढते हो कि उसके बिहेवियर का क्या रीजन हो सकता है। You might think he is very upset today, or he might had a very stressful day. Moreover, intellectualization can be a useful way of explaining and understanding negative emotions also. For example, a child is diagnosed with leukemia. Instead of getting into depression, the father of that child sits down to research about that disease, looks for good cancer hospitals, plans his finances for his son's treatment, looks up for various self-help groups. In this way, that father tries to face the situation in a logical manner.
Over to you, sir. मैम और 2 है, आप कंप्लीट कर दीजिए, मैं एक साथ बता देता हूँ. Okay, fine. ठीक है. Another very important defense mechanism is displacement का मतलब है विस्थापन करना. Another example, suppose एक दिन आपके बॉस या सीनियर्स ने आपको किसी बात पर डांट दिया, पर उसमें आपकी पूरी गलती नहीं थी, तो आपका ईट क्या बोलेगा? ईट बोलेगा कि अपने बॉस को इस डांट का मुंह तोड़ जवाब दो, क्योंकि ईट का काम है अपने डिजायर्स को पूरा करना. पर रियलिटी में आप ऐसा कर नहीं सकते हो. तब ईगो कैसे बैलेंस करेगा? तो आपके मन में जो गुस्सा है वो आप कहीं और जाकर निकालोगे. मुमकिन है घर लौटकर आप अपने छोटे भाई पर गुस्सा निकाल दें या अपने हस्बैंड या वाइफ से लड़ने लगे. So therefore, displacement can be defined as transfer of impulses or feelings onto another less threatening person or to an object. तो कभी कभी हम अपना फ्रस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट्स पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं. लाइक गुस्से में आकर हम कुछ चीजें भी तोड़ते हैं. तो देखा गया है तोड़ने से आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है और काफी हद तक आपका बिहेवियर भी नॉर्मल हो जाता है. The last one is next please. The last one is sublimation, which means transforming impulses into something constructive. In fact, sublimation is a kind of compromise. हमारे मन में कुछ socially unacceptable behavior और feelings है, उसे socially acceptable behavior में प्रकट करने का sublimation कहते हैं. Suppose किसी पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल एग्रेशन है, तो उसे फिजिकल स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग, बॉक्सिंग में डाल दिया जाता है, जिससे कि उसका एग्रेशन प्रॉपर वे में चैनलाइज हो. अनदर एग्जांपल, सपोज किसी के मन में अगर क्रिमिनल थॉट्स आ रहे हैं, वायलेंट थॉट्स आ रहे हैं या विचार आ रहे हैं, ऐसे इसे सप्लीमेट करके अपने डिफेंस का इस्तेमाल करें. तो अगर किसी के मन में क्रिमिनल थॉट्स आती है तो वो एक मिस्ट्री नॉवेल लिख सकता है और किसी टाइप की मूवीज, इस टाइप की मूवीज भी बना सकता है. या एक पेंटर जिसके मन में सेक्सुअल थॉट्स है तो इस टाइप की पेंटिंग बना सकता है. मतलब कंस्ट्रक्टिव मैनर या प्रोग्रेसिव मैनर में अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फ्रस्ट्रेशन को निकालना is called sublimation. So what you say? Thank you, ma'am. Yes. So we have been talking about the rationalization first. तो rationalization में क्या होता है? Logically हम behave करने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. जैसे हैंडराइटिंग से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो